Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nitin, Department of Physics, Islamic Education. Dear students, it is the same series which has been started earlier, and we are going to do MCQs, further MCQs on projectile motion. Projectile motion से related कुछ MCQs रहते थे, तो we are going to do या solve those MCQs. MCQ number 1 है, for which angle of projection the range of projectile is equal to r of its maximum range. MCQ को गौर से पढ़ो, for which angle of projection, यानी we are interested in theta, okay? The range of projectile, range का मतलब है capital R is equal to half of its maximum range. मैक्सिमम रेंज का मतलब है आर मैक्सिमम, ठीक है? मैग्नेटिक बॉल आर 20 में आया है और नीचे ऑप्शंस दे रहे हैं, तो आप लोग अगर गौर से देखिए, ये हमें गिवन है कि रेंज बराबर है मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 2. दिस इज गिवन इन द एमसीक्यू, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. रेंज का फार्मूला है vi squared divided by g, and this is sin 2 theta. और याद रखिए मैक्सिमम रेंज बराबर है vi squared divided by g, और एक टुगेदर है तो डिवाइड बाय. अगर आप यहाँ पर 45 एंगल पुट करें तो you will get the equation for the maximum range. आप इधर 45 पुट करें तो 2 multiplied by 45 you will get 90. sin 90 is 1. So it goes to 1, and therefore we are getting the maximum range like this divided by 2. अब गौर से देखें, vi squared by g, vi squared by g के साथ कैंसिल, ठीक है? So we are left with sin 2 theta is equal to half. In other words, 2 theta is equal to sin inverse half. आपको पता है sin 30 half के बराबर है, तो sin inverse half is 30. Yes. So I will write 2 theta is equal to this is 30. देखिए अगर 2 theta 30 के बराबर है, तो ये 2 अगर नीचे आ जाए 30 डिवाइड बाय 2 15. तो याद रखिए अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री एंगल से लेंगे, तो उसका जो रेंज है r, that will be equal to the 2 half of the maximum range. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए. Yes. अच्छा, MCQ number 2 है, the height of a projectile is maximum at an angle of. The height of a projectile is maximum at an angle of. तो देखिए हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला है h is equal to vi squared divided by 2g, ठीक है? और इधर है sin स्क्वायर थीटा. आपको पता है कि अगर आप थीटा 0 पुट करें तो sin 0 is 1. Yes. आप थीटा हाफ पुट 30 पुट करें तो sin 30 is half. मेरे एंगल अगर आहिस्ता बढ़ जाते हैं तो उसका sin बढ़ जाता है. Yes. ठीक है ना? Yes, sir. तो याद रखिए for that particular angle the height will be maximum for which sin square theta is maximum. यानी for which sin square theta is 1. तो आपको पता है sin 30 half के बराबर है. Yes, sir. sin 45 1 over root 2 के बराबर है. sin 60 under root 3 by 2 के बराबर है. Yes, sir. 866. sin 90 is 1. इसका मतलब है कि for 90 the range will be the height will be maximum. लेकिन यानी अगर आप लोग यहाँ पर पुट करें, ठीक है, थीटा की जगह अगर आप 90 तो आपको पता है sin 90 is 1. sin 90 is 1. इसके ऊपर स्क्वायर है, I write square. 1 का square means 1. 1 multiplied by this, we are getting this. So it means that the height will be maximum when the angle is 90. Yes. आपको बोलिए
ऑप्शन बी सही है, लेकिन देखो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज 0 डिग्री एंगल पर पॉइंटिंग, if you see the range will be, sorry, the height will be 0. अगर आप 0 डिग्री एंगल पर पॉइंटिंग तो sin 0 is 0, the range will be 0. Zero. Sorry, the height will be 0. Yes. अगर आप इसको एंगल 30 से पॉइंटिंग तो हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, 45 से पॉइंटिंग हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, अगर आप 60 पर पॉइंटिंग तो हाइट और बढ़ जाती है, और 45 पर रेंज मैक्सिमम, ठीक है, 45 पर रेंज मैक्सिमम हाइट आप देखिए कितनी है, और 60 पर रेंज ज्यादा, सॉरी हाइट ज्यादा, और जो रेंज है वो 60 से ज्यादा है। लेकिन अगर आप 90 से पॉइंटिंग तो 90 पर range, sorry, the height will be maximum and the range will be 0. 90 पर height is maximum, और ये वापस अगर इधर आ जाते हैं तो रेंज will be 0. तो याद रखिए 90 एंगल पर प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है it will be maximum. Yes. अच्छा, dear students, this is MCQ number 3. और याद रखिए we are going according to the new syllabus which is issued by the UGC 2025. Okay? कहते हैं कि a body is protected so that it has a maximum range R. कहते हैं कि अगर maximum range R है तो इसका maximum height कितनी है, ठीक है? तो आपको पता है, okay, the height is given as, the height is vi squared divided by g, will give 2g, और इधर है sin square theta. इसे हम आम तौर पे कहते हैं maximum height. And this is equation number 1. और हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला है वह है vi squared divided by g, and this is sin 2 theta. ये हमें पता है the range of a projectile is maximum at 45. This is very easy, हमने बार बार पढ़ा है कि 45 का रेंज क्या होगा, लेकिन अगर एंगल 45 है, अगर आप 45 को करें तो 2 multiplied by 45 we get 90. Sin 90 is 1. तो याद रखिए this r is maximum, ठीक है? लेकिन इन्होंने यहाँ पर r लिखा है, r maximum ना, तो देखेंगे जब r लिखूंगा r, and this is maximum which is vi by 2. This is the equation. याद रखिए maximum range लफ्ज से हमें पता चला कि angle is 45. तो आप ऐसा करें कि भी angle 45 को करें तो we will see what happens. लेकिन इसमें अगर आप angle 45 को करें तो I write the maximum height is vi squared divided by 2g, और this is sin square 45. ये मैं लिख सकता हूँ vi squared divided by 2g. Sin 45 is 1 over under root 2. इधर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे. अगर आप under root 2 का स्क्वायर लाएंगे, this will become 2 and this will become half. I write vi squared divided by 2g, or whatever this is half. This 2 multiplied by this 2, you will get 114. Okay, and this is vi squared divided by g. What is vi squared by g? This is the maximum range. Okay, this is maximum range. I can write r divided by 4. यानी 45 डिग्री एंगल पर जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होगा. मसलन अगर ये रेंज 100 मीटर है तो द हाइट विल बी 50. अगर ये रेंज 400 है तो द हाइट विल बी 100. अगर ये रेंज सपोज 16 मीटर है, डिवाइड बाय 4 करें तो द मैक्सिमम हाइट विल बी 4 मीटर. Yes. So this is a very important relation between maximum height or maximum range. Yes. अगर आपको R given है तो ये calculate maximum height. अगर आपको maximum height given है तो ये calculate maximum range.
Yes. लेकिन this relation is valid only for an angle of 45. Projecting. सही है? तो कौन सा सही है? Option A. Option A. शाबाश, option A is the correct option. अच्छा, this is MCQ number 4. MCQ number 4 में लिखा है for which of the following angles the maximum height of a projectile is equal to its range. यानी किस एंगल पर मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर होगा? मैक्सिमम रेंज के ना, रेंज जी सर. ठीक है ना? मतलब ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि मैक्सिमम हाइट जो है ये रेंज के बराबर है. इट इज गिवन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है bi squared divided by 2g, and this is sine square theta, और रेंज का फार्मूला है bi squared divided by g, और this is sine 2 theta, not square, sine 2 theta. तो देखिए bi squared by g के साथ कैंसिल करो. Yes. इधर क्या रह जाएगा? इधर रह जाएगा How? और साइन Square theta. स्क्वायर थीटा, और इधर रह जाएगा साइन 2 थीटा. ठीक है? Yes. इससे पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला है वगैरह वगैरह. लेकिन देखो ये मैं लिख सकता हूँ हाफ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा. ओके, और साइन 2 थीटा का फार्मूला है 2 साइन थीटा cos थीटा. ट्राइगोनोमेट्री में इसे डबल एंगल फार्मूला कहते हैं. डबल एंगल फार्मूला, when थीटा इज डबल this would be written like this. ओके, तो आप लोग देखिए ये sin थीटा के साथ है. इधर क्या रह जाते हैं sin थीटा, और इधर क्या रहेगा? इधर cos. इधर 2 है और इधर हाफ. ये 2 अगर इधर आ जाए तो 2 जा 4, ये 4, और ये क्रॉस थीटा अगर नीचे आए तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 4. What is sin theta by cos theta? This is Tangent theta. Tangent theta 4 के बराबर. It means theta is equal to tangent Inverse. 4. Tangent inverse 4 तकरीबन 75.67 something के बराबर है, which is approximately equal to 76. You will have ये बहुत मशहूर एंगल. You will have to remember this. If you are going to take theta and we take this, और आपको ये पता नहीं है कि tangent inverse क्या है, this is very bad for you. तो याद रखिए, this is a very famous angle. ये आपको याद रखना चाहिए कि 76 डिग्री एंगल पर जो मैक्सिमम हाइट है वो रेंज के बराबर है. तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. अच्छा, एक बात आप याद रखिए, फिर जवाब इस तरह जाता है कि for which of the following angles the maximum height of a projectile is equal to its range. तो मसलन अगर ऑप्शन ए में लिखा है 76 डिग्री और ऑप्शन बी में लिखा है, फिर जवाब इस तरह ऑप्शन बी में लिखा है tangent inverse 4. तो बस उसको ये तो याद होता है लेकिन ये भूल जाते हैं. लेकिन tangent inverse 4 जो है 76 के बराबर है. तो ऑप्शन सी में देयर शुड बी बोथ ए एंड बी. अब अगर ऑप्शन बी में लिखा है नन तो सी से, और अगर ऑप्शन बी में लिखा है ऑल तो फिर डी से. Yes. अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5 है. The range of a projectile is the same for two angles of rotation which are mutually. देखिए पहले लेक्चर्स में 13 में 12 में हमने बात बता है कि A से दो एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर है. ठीक है, उन दोनों का रेंज क्या होगा? सेम. और इन टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, ज्योमेट्री में इन्हें क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होगा.
ये हमने पहले भी किया है, लेकिन आप लोग देखिए थोड़ा सा अगर इसे रिवाइज करें, रेंज बराबर होता है बी आई स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। याद रखिए जो साइन टू थीटा है ट्राइगोनोमेट्रिकली इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज बी आई स्क्वायर बाई जी, और इधर मैं इसे लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा। आप पिछले वीडियोस देखें, ये अगर साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला है तो साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, अब इसे उस फार्मूले से खोलें तो यू विल गेट sin। In other words, this range to is bi square divided by g and this is sin। इसे अगर आप this is 2, अगर आप इसे 2 कॉमन लें तो I write 90 minus this is the equation number 2। अच्छा अब आप देखिए रेंज मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, रेंज मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो पेपर में आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है, यू शुड हैव टू इट इज विल बेस योर लाइफ। यू विल हैव टू रिमेंबर कि एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर है इनका भी सेम होता है। 12 ये भी रेंज है, ये भी रेंज है। देखिए इधर बी आई स्क्वायर बाई जी है, इधर भी बी आई स्क्वायर बाई जी है, फॉरगेट अबाउट इट। इधर साइन है, इधर भी साइन है, फॉरगेट अबाउट दिस। इधर आप देखिए 2 है, इधर भी 2 है, फॉरगेट अबाउट। इसका मतलब है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से काटें या 90 माइनस थीटा से काटें, द रेंज विल बी द सेम। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से काटें और या 90 माइनस 30 मतलब 60 से काटें तो द रेंज विल बी द सेम। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल से काटें और या 90 माइनस 45 यानी 45 से काटें द रेंज विल बी द सेम। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज 60 से काटें या 90 माइनस 60 यानी 30 से काटें रेंज विल बी द सेम। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज एनी एंगल आप ले, आप किसी प्रोजेक्टाइल को सपोज 10 डिग्री से काटें, ठीक है, या 90 माइनस 10 डिग्री से काटें यानी 80 से काटें तो याद रखिए द रेंज विल बी द सेम। तो यहाँ से ये पता चला कि एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर इन पर रेंज सेम होगा। आपको देखिए 30 और 60 का सम 90, 45 और 45 का सम 90, 60 और 30 90, 10 और 80 90। इन अदर वर्ड्स ये जो थीटा है, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये एंगल और ये एंगल ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। व्हाई? बिकॉज़ देयर सम इज 90। याद रखिए एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो इनका रेंज सेम हो। और ज्योमेट्रिकली इन द लैंग्वेज ऑफ ज्योमेट्री वी से कि एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो दे आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो शुड बी सेम। अच्छा ओके, MCQ number 6 है the range of a projectile on a horizontal plane is same for which of the following pair of things। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किस पेयर के लिए जो रेंज है वो हमारे पास सेम है। देखिए MCQ नंबर 5 में अभी हमने पढ़ा कि any two angles which are complementary। अच्छा तो देखिए any two angles जिनका सम 90 के बराबर हो यानी which are complementary angles उन पर रेंज सेम होता है। मसलन अगर आप 15 और 18 दोनों को ऐड करें तो इससे 90 नहीं आता, इससे 33 आता है। यस सर। ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं। आप लोग अगर 43 और 47 ऐड करें तो इन दोनों से 90 आता है। इसका मतलब है ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है और इन पर रेंज क्या होगा सेम।
आप लोग अगर 20 और 88 करें, जैसे 90 नहीं आता है, इससे 100 आता है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। आप 53 और 62 ऐड करें तो इससे आता है 115, तो 115 90 नहीं है, इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो 43 और 47 जो है, these are complementary angles because इन दोनों का सम 90 के बराबर है, therefore ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पेपर में करते हैं तो आप डिटेल में नहीं जाएंगे कि आप कैलकुलेशन करके फलाना फटाफट होते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लोग बस ऐड करिए, ठीक है, दोनों एंगल्स को ऐड करें, तो जिस ऑप्शन में दोनों का एडिशन 90 आता है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ओके, एमसीक्यू नंबर 7 ले, a missile is fired with a speed of 98 meters per second at an angle of 30 degrees with the horizon. The missile is airborne for. क्या देखिए यहाँ पर ये जो 98 मीटर पर सेकंड है ना, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो 30 है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और द मिसाइल इज एयरबोर्न फॉर्म। एयरबोर्न का मतलब है कि मिसाइल हवा में यानी एटमॉस्फेयर में हवा में कितना टाइम गुजारता है। So we have to basically calculate the total time taken by the missile from the point of projection to the point of impact. इसका ये मतलब है, सपोज अगर आप किसी मिसाइल को 30 डिग्री एंगल से फेंकेंगे, क्लियर, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इफेक्ट है, मिसाइल यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेता है। तो हमने पढ़ा था कि मिसाइल या प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लेता है, दिस इज कॉल्ड टाइम टू रीच द टॉप, व्हिच इज vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। लेकिन अब देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ से फिर की तरह जाता है, ये टाइम अगर t है तो ये टाइम भी t है, और याद रखिए यहाँ पर हम एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट टेक्स्ट बुक। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है t डैश वो बराबर होगा दिस टाइम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम, तो you can write t dash is equal to 2t। How much is t? तो t का ये वैल्यू अगर आप इधर पुट करें तो 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। अब अगर आपको पेपर में ये फार्मूला डायरेक्ट याद है या इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है या इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको समझा तक समझ आता हूँ। आप इसमें वैल्यूज, तो देखिए अगर आप इसमें वैल्यूज करें तो आई कैन राइट t dash is equal to, this is 2, what is vi, 98 मीटर पर second, okay, और this is sin 30, और नीचे g जो है आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह लिख सकता हूँ कि t dash is equal to, this is 98, और इस पॉइंट के अगर आप ऊपर 10 देखिए, आई राइट 10 हियर, और यहाँ पर आप देखिए 9.8 है, और sin 30 जो है ये हाफ के बराबर, और ये मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप करें, देखिए मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड मीटर पर सेकंड डिवाइड सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, दे आर रॉन्ग। 8 सेकंड इसके साथ कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद सेकंड, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा और सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। यस सर। अब ये 2 इस आप देखिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ठीक, और ये पॉइंट कैंसिल करके यहाँ पर देंगे 98 के साथ कैंसिल करो, यस, तो आप लोगों के पास आ जाएगा कि रेश इज 10। This is the total time taken by the missile from the point of projection in the launching point to the point of impact, okay, so कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। MCQ number 8 है, a body goes up reaches a maximum height of 100 meters। देखिए
मैक्सिमम हाइट हमें गिवन है 100 मीटर, ये 100 मीटर। आगे देखते हैं another body या ball with double mass is thrown with double initial velocity reaches a maximum height of, यानी इस दूसरे बॉडी या बॉल के लिए हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है vi² डिवाइडेड बाय 2g और इधर है sin स्क्वायर। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि अगर आप मेस डबल करें, ट्रिपल करें, 4 टाइम ज्यादा करें, डजंट मैटर, क्योंकि इस फार्मूले में मेस ऑफ बॉडी या प्रोजेक्टाइल नहीं है। तो फॉरगेट अबाउट द मेस। Yes. और यहाँ से पता चलता है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करें, ये वेलोसिटी अगर आप डबल करें तो आपको पता है अगर आप 2 का स्क्वायर ले तो वी आर गेटिंग 4। इसका मतलब है कि वेलोसिटी को अगर आप डबल करें तो मैक्सिमम हाइट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो पहले अगर मैक्सिमम हाइट थी 100 मीटर, नाउ द मैक्सिमम हाइट विल बी 400. तो ऑप्शन डी सी। Yes. अच्छा, ये MCQ नंबर 9 है when a projectile is at the highest point। highest point का मतलब है summit point, top, okay? Yes. of its trajectory, the directions of its velocity and acceleration are। तो आप लोग देखिए कि हमने बार-बार पढ़ा है, it's very simple। आपको पता है acceleration is always directed downward, g is always directed downward, Yes, sir. in projectile motion। Yes, sir. जब आप प्रोजेक्टाइल को यहाँ से इस तरह प्रोजेक्ट करें तो देखिए वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। तो आपको पता है इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल। ठीक है, इसी तरह आप लोग देखिए अगर बॉडी इधर आ जाती है तो आप इफ यू सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, वर्टिकल ऐसा कम हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। आप देखिए हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट, वर्टिकल कम। अगर आप बिल्कुल टॉप पर देखें, टॉप पर, तो टॉप पर हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसका फाइनल कंपोनेंट जो है दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर vfy 0 है और ये है vfx का डायरेक्शन, लेकिन जो एक्सेलरेशन है g इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर horizontal component of velocity का ये डायरेक्शन है because the vertical component of velocity is 0 and g is always directed downward। So what is the angle between them? 90। 90. तो 90 का मतलब है कि velocity and acceleration are perpendicular to each other। तो ऑप्शन डी से। Yes. अच्छा, MCQ नंबर 10 है the kinetic energy of a projectile becomes half at the highest point during a projectile motion when it is projected at an angle of, यानी हमने एंगल कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन का ये मतलब है। देखिए इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप इसे क्या कहते हैं, क्वांटम प्रोजेक्शन। क्वांटम प्रोजेक्शन पर अगर काइनेटिक एनर्जी है सपोज kb, तो क्वेश्चन ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर हाफ हो जाती है, इसे समिट पॉइंट कहते हैं, दिस इज ks, तो प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल से लेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल। Yes. जब कि हमने पिछले लेक्चर्स में एक फार्मूला पढ़ा था कि ks और kb जो है ये रेशो क्रॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये रेशो किस एंगल पर हाफ होगा। Yes. दिस इज द क्वेश्चन। याद रखिए अगर आप इसमें 45 को करें तो आपको पता है कि cos 45 इज 1/2 और इसका स्क्वायर ले तो इस स्क्वायर रूट 2 का अगर आप स्क्वायर ले तो दिस विल बिकम हाफ, मतलब ks kb का हाफ। इट मींस ks और ये kb इधर आ जाएगा तो दिस विल बी kb/2। यानी अगर आप प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल से लेंगे तो ये एनर्जी इस एनर्जी के हाफ के बराबर होगी। मसलन अगर ये 100 जूल है तो इधर ये 50 जूल, अगर ये 16 जूल है तो दिस विल बी 8 जूल, अगर ये 500 जूल है तो दिस विल बी 250 जूल।
ये कब, when the angle is 45। अब अगर कहते हैं कि सपोज अगर ये 1/4 है तो फिर थीटा कितना होगा 60। अब यहाँ पर 60 पुट करें तो cos 60 is हाफ का स्क्वायर ले तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरह 30 पर ये रेशियो 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 का मतलब है कि अगर ये 100 है तो ये 75 है। ठीक है, Yes. जिस तरह तक हमने पहले भी किया था। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए MCQ नंबर 11 है कि a projectile has a maximum range of 200 मीटर। ये हमें गिवन है कि मैक्सिमम रेंज कितना है 200 मीटर। आपको पता है रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला है vi² डिवाइडेड बाय g एंड sin 2θ। मैक्सिमम लफ्ज से पता चलता है, मैक्सिमम रेंज का मतलब है द एंगल इज 45। इधर आप 45 पुट करें तो 90 आ जाएगा, sin 90 is 1। तो मैक्सिमम रेंज का ये फार्मूला है। दिस इज राइट इक्वेशन नंबर। और आपको पता है मैक्सिमम हाइट बराबर होता है vi² डिवाइडेड बाय 2g इनटू sin स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है 45। Yes. कहां से पता चला? मैक्सिमम रेंज लफ्ज से। Yes. बिकॉज़ द रेंज इज मैक्सिमम एट 45। तो इधर आप 45 पुट करें तो ये आ जाएगा दिस इज vi² डिवाइडेड बाय 2g। इधर 45 पुट करो sin 45। ठीक है, sin 45 इज sin 45 कितने के बराबर होगा? प्रोग्राम नंबर इसका स्क्वायर ले लें, ये 2 हो जाएगा, इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय vi² बाय g। तो याद रखिए मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का 45 पर ये रिलेशन। अब साफ साफ लिखा है कि अगर मैक्सिमम, ठीक है ना, a projectile has a maximum range of this। मैक्सिमम रेंज कितना है? मैक्सिमम रेंज है 100 मीटर डिवाइड बाय 200. ठीक है, सॉरी 200। दिस इज 200, दिस इज 200। ये कितना आ जाएगा? Or 50. दिस विल बिकम, आप 4 से डिवाइड करें तो इट विल बिकम 50। दिस विल बिकम 50। सही है? Yes. तो कौन सा ऑप्शन सही है? Option B. ठीक है, तो क्या कि इस कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल से लेंगे तो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज। अब इस फार्मूले का फायदा ये है कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज गिवन है तो यू कैन डिटरमिन मैक्सिमम हाइट। अगर मैक्सिमम हाइट गिवन है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट मैक्सिमम रेंज। Yes. ठीक है, सो मेरे ख्याल में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड वी सॉल्व लॉट ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, इतने काफी है। इंशाल्लाह इसके बाद वी विल बैक टू चैप्टर नंबर 2। वेक्टर स्केलर का जो चैप्टर है वो न्यू सिलेबस में इंक्लूडेड है। इंशाल्लाह वी विल बैक टू दैट। थैंक यू वेरी मच।